Hello everyone. In the previous video, we discussed the mathematical functions and the statistical functions. Now let's continue with the other types of functions that can be used in a spreadsheet. Let's start with text functions. Now what are text functions? Well, these are the functions that help us to manage text data. Alright? और जब हम text data की बात करते हैं तो it can be a single character और group of characters. ठीक है? और इन group of characters को हम कहते हैं string. So what is a string? String is a group of characters. Now what are the examples of these text functions? Well, there are multiple examples such as lower function, upper function, right function, etc. Now let us consider an example for better understanding. So suppose I have two strings. String 1 is hello and string 2 is world. Alright? Now I'll be using these 7 functions onto these two strings. Alright? So let's start with the first text function which is called concatenate. Concatenate function का काम होता है वो आपकी दो strings को combine करके एक साथ mention करने में, एक cell के अंदर mention करने में आपको help करता है. Alright? So let's apply the function. Again, we will follow all the rules of writing a function which we have discussed in the previous video. So first rule is always begin the function or the formula with equals to sign. So I'll place the equals to sign. After that, type the name of the function, which in my case is concatenate. Alright? Then open the parenthesis and specify the arguments. अब हमारे पास argument में क्या है? पहला string is in cell B1. So I'll select B1, place comma, then select the second cell which contains your string 2, close the parenthesis and press the enter key. So you see that concatenate function has combined these two strings together in a cell. Alright? Next function is length function. This is short for length. That means अगर आपको ये find out करना है कि आपके string की length क्या है तो वो आप length function की मदद से कर सकते हैं. For example, if I write equals to length and within the parenthesis I specify string 1. Alright? तो देखिए उसने मुझे आंसर रिटर्न किया 5. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि string 1 is hello और hello में कितने characters हैं? 5. So my answer is 5. Now the question arises, what if string 1 has space also? तो क्या length function spaces को count करेगा? Well, yes. The length function also counts the number of spaces which are included in a string. ठीक है? फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने string के बीच में पहले या बाद में space दिया है. It will always count it. और आप देख रहे होंगे concatenate में भी accordingly changes होते जा रहे हैं क्योंकि वो इन दोनों strings पे ही apply हुआ था. Alright? Next is left function. Now left function क्या करता है? Left function आपके string में left side से characters count करके आपको देता है कि for example I have written equals to left. तो इसमें मुझे दो बातें बतानी है. First is the strings suppose world पे मैं apply कर रही हूँ left function. And then comma place करके you have to specify the number of characters कि आप कितने characters देखना चाहते हैं. For example, I want 2 characters from the left side. So इसका meaning क्या है कि आप B2 में जो string है which is word उसके left side के 2 characters screen पे देखना चाहते हैं. तो देखिए left side पे 2 characters beginning के W and O. Similarly for right equals to right, specify the string, place the comma sign and specify the number of characters you want. For example, I want the last 3 characters. तो last 3 characters R, L, D आ गए आपकी स्क्रीन पर. अब लेफ्ट एंड राइट के अलावा अगर आपको इन बिटवीन कहीं से आपको कैरेक्टर्स चेक करने हैं, देखने हैं सेल में, तो उसके लिए आपके पास होता है मिड फंक्शन. ऑलराइट? सो equals to mid, then specify the string. Alright? और अब यहाँ पे आपको दो बातें बतानी है. सबसे पहले आपको बताना है starting point
कि इन बिटवीन कहाँ से आपको प्रिंटिंग शुरू करनी है. सो सपोज मैंने कहा सेकेंड कैरेक्टर से, तो आई विल राइट 2. देन कॉमा प्लेस करके बताइए कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आई राइट 4. सो इसका मतलब वर्ड में सेकेंड कैरेक्टर ओ से प्रिंटिंग शुरू कीजिए और 4 कैरेक्टर्स प्रिंट कर दीजिए. तो आप देखिए ORLD, बिकॉज O वॉज द सेकेंड कैरेक्टर एंड ORLD 4 कैरेक्टर्स उसने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए. सो दिस वॉज मिड फंक्शन. नेक्स्ट इज अपर फंक्शन. अब आपने पढ़ा होगा अपर केस एंड लोअर केस. अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स. तो अगर आपने कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है और आपको उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप अपर फंक्शन यूज कीजिए. ऑलराइट, सो यू विल राइट इक्वल्स टू अपर एंड सपोज आई वांट दिस स्ट्रिंग to be in upper case. Now pay attention, W is already in upper case. तो W तो वैसा ही रहेगा, बट बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके कैपिटल में हो जाएंगे. सिमिलरली अब अगर आपको सब कुछ लोअर केस में चाहिए, सो यू विल राइट इक्वल्स टू लोअर, अगेन स्पेसिफाई द स्ट्रिंग. सपोज मैं ये वाली स्ट्रिंग ले रही हूँ, देन प्रेस दी एंटर की. अब इसमें आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लोअर केस है मगर H नहीं है, तो वो सिर्फ H को लोअर केस करेगा, बाकी तो ऑलरेडी लोअर ही था. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट फंक्शंस. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज लॉजिकल फंक्शन. अब लॉजिकल फंक्शंस क्या करते हैं? दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. यानी कि यहाँ पर आप एक कंडीशन को टेस्ट करते हैं और उस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने के बेसिस पर कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दे आर यूज टू टेस्ट अ कंडीशन एंड स्पेसिफाई द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल है इफ फंक्शन. अब इफ फंक्शन को यूज करने से पहले उसका सिंटेक्स देख लीजिए. द सिंटेक्स ऑफ इफ फंक्शन इज, सबसे पहले यू विल स्पेसिफाई द इक्वल्स टू साइन, देन आफ्टर इक्वल्स टू साइन द नेम ऑफ द फंक्शन, देन विद इन द पैरेंथेसिस सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे और फिर उस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या एक्शन करना है वो लिखेंगे और उस कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या एक्शन करना है वो लिखेंगे. ऑलराइट, नाउ टू अंडरस्टैंड द इफ फंक्शन लेट अस कंसीडर अ स्प्रेडशीट जहां पर आपको कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी के मार्क्स आउट ऑफ 100 गिवन है. ऑलराइट, नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स I'll use my mathematical function which I have discussed in the previous video, sum. Alright, then open up the parenthesis, select the range, close the brackets and press the enter key. तो फर्स्ट स्टूडेंट आशीष के लिए टोटल मार्क्स 88 आए विच इज 32 प्लस 56. ऑलराइट, अब आप सभी के लिए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन आई कैन यूज द ऑटो फिल. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपने माउस पॉइंटर को सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर जाइए और जब आपका सेल माउस पॉइंटर इस तरह का प्लस बना आ जाए, ब्लैक कलर का प्लस आइकन, दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल, तो आप अपने माउस को ड्रैग कर दीजिए. तो देखिए बाकी सब में ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आ गए और हर जगह आप देखिएगा फंक्शन लगा हुआ है. ऑलराइट, हर सेल पे फंक्शन जो है वो कॉपी हो गया. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द इफ फंक्शन, मुझे इस कॉलम ई में रिमार्क्स लिखने हैं. ठीक है, और रिमार्क्स हैं 2, 1 इज पास एंड द सेकेंड इज फेल. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिस भी स्टूडेंट के 66 अबव टोटल मार्क्स हैं उसको आपने पास रिमार्क देना है और जिसके भी बिलो 66 हैं उसको आपको फेल रिमार्क देना है. तो अब मैं सब में खुद से नहीं लिखूंगी फेल और पास, मैं सिंपली इफ फंक्शन का यूज करूंगी. सो आई विल राइट इक्वल्स टू इफ, ओपन द पैरेंथेसिस और सबसे पहले आप क्या बताएंगे? कंडीशन. कंडीशन क्या है कि इस सेल की वैल्यू, राइट, टोटल यही है ना D3, सो D3 की वैल्यू अगर ग्रेटर है 66 से, दिस इज योर कंडीशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक इन एवरी सेल. ऑलराइट, इन कॉलम D. सो इफ D3 ग्रेटर देन 66 तो कॉमा प्लेस करके डबल कोट्स में लिख दीजिए कि इसके ट्रू होने पे आपको क्या लिखना था. सो माई मैसेज वॉज पास. फिर कॉमा प्लेस कीजिए और डबल कोट्स में लिख दीजिए कि अगर कंडीशन करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, तो क्या करना था.
Then I have to specify fail. Alright, now I'll press the enter key. So for 88, obviously the student has passed the examination. Again using the autofill, I'll drag it और अब आप देख लीजिए यहाँ पर 62 पर उसने आपको रिमार्क क्या दिया है, फेल. ओके, बिकॉज द कंडीशन वॉज इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 66. तो बाकी सब जगह 66 अबव था तो उसने पास दे दिया. ऑलराइट, सो दिस वॉज योर इफ फंक्शन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस there are other ways of manipulating the data in a spreadsheet. Alright, what is data manipulation? That is making changes in the data so that it is easier to read, it is easier to understand, or it helps us to organize the data. So we can say that data manipulation is the process of changing the data to make it easier to read or be more organized. अब आप डेटा मैनिपुलेशन में बहुत से फीचर्स एक्सेल के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्ट फीचर की हेल्प से आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. देन सॉर्टिंग के अलावा यू कैन यूज़ फिल्टर फीचर. फिल्टर फीचर में आप कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही व्यू कर सकते हैं, बाकी सबको टेम्परेली हाइड कर सकते हैं. तो इसी तरह के बहुत सारे डेटा मैनिपुलेशन के फीचर्स एक्सेल प्रोवाइड करता है. The one that we are going to discuss today is goal-seek. Alright, so let's consider an example. Let's consider the previous spreadsheet. अब यहाँ पर आशीष के मार्क्स 88 थे. Alright, और ये कैसे आए थे? ये आए थे इन दोनों सेल के मार्क्स को ऐड करके. Now what if I told you कि आशीष के टोटल मार्क्स 80 हैं? That's right. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टोटल मार्क्स गलत हो गए हैं, इस बच्चे के टोटल मार्क्स 88 नहीं, इसके तो 80 मार्क्स आने चाहिए थे, और अगर आप यहाँ पे खुद से 80 टाइप कर दें तो अब देखिए आपका डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है. बिकॉज अगर आप 32 + 56 करते हैं तो यू नो कि टोटल 88 आना चाहिए. दैट मीन्स कुछ गलती है. तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि बेटा आशीष के मार्क्स टोटल 80 आएंगे क्योंकि उसके इंग्लिश के मार्क्स में चेंजेस हुए हैं. अब मैंने आपको नहीं बताया कितने मार्क्स कम हुए हैं या क्या एग्जैक्ट इंग्लिश के मार्क्स हैं. सो आपको भी कोई नीड नहीं है कि आप खुद यहाँ पे -8 करके नंबर को टाइप करें, क्योंकि आपका काम करने के लिए हमारे पास गोल सीक फीचर है. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ कैन आई यूज गोल सीक. अभी मैं इसको वापस 88 कर रही हूँ. ऑलराइट, फंक्शन वापस से कर दिया मैंने. नाउ गोल सीक फीचर क्या करता है, आपके एक सेल के वैल्यू को चेंज करने में मदद करता है बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द वैल्यू इन द अनदर सेल. ठीक है, इस वैल्यू को फिक्स कर देगा 80 बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सेल B3. ये चेंजेस आप नहीं कर रहे हैं, गोल सीक अपने आप करेगा. सो लेट्स गो बाय द स्टेप्स. सो गोल सीक फीचर यूज करने के लिए क्लिक ऑन द डेटा टैब. इन द डेटा टैब अंडर द डेटा टूल्स ग्रुप click on what if analysis button and choose the second option, that is goal seek. Alright, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. अब यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी. सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल. तो सेट सेल में आप क्या बताएंगे कि आप किस सेल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं. सो आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ D3. तो मैंने उस पर क्लिक करा, ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस D3 आ गया. देन यू विल हैव टू स्पेसिफाई वैल्यू. आप इसकी क्या वैल्यू बनाना चाहते थे, आप इसको 80 करना चाहते थे. ठीक है. देन थर्ड थिंग इज बाय चेंजिंग सेल, कि आप कौन से सेल को चेंज करके इसे 80 बनाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू चेंज द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, सो आई विल सेलेक्ट B3. ऑलराइट, और अब आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप देखिए टोटल मार्क्स आपके 80 हो गए और इंग्लिश के मार्क्स रिड्यूस होके 24 बन गए. अब अगर आप इस कैलकुलेशन को चेक करें 24 + 56, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सो दिस वाज योर गोल सीक. सो लेट्स गो बाय द डेफिनेशन ऑफ गोल सीक. इट इज अ फीचर used for fixing a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. Alright, and what are the steps? You have to go to the data tab, click on what if analysis button and choose the goal seek option. Then you have to specify all the required values and click on OK. Alright. Well, this is all for today's video.